Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is nuisance under tort law. In the course of today's video, we will discuss what is nuisance, how many kinds are there for this nuisance, what are the defenses available and what are the remedies available for nuisance. One thing to note here is this, that we are not going to cover the nuisance that is mentioned in the Indian Penal Code. This lecture will strictly give you the idea about nuisance under tort law. Now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT, nuisance. This particular PPT has been divided into 6 parts. First part would be the introduction, second part would be the definition, third part would be the kinds of nuisance, that is public nuisance and private nuisance. And then we will look at remedies. Introduction. Nuisance as a tort means an unlawful interference with a person's use or enjoyment of a land or some right over. In connection with it, acts in it with comfort, healthy or safety are examples of it. The interference may be any way, that is noise, vibrations, heat, smoke, smell, fumes, water, gases, electricity, excavation or disease producing germs. Nuisance should be distinguished from trespass. Trespass is direct and physical interference with plaintiff's possession of land through some materials or tangible object. यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि न्यूसेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अनलॉफुली किसी और बंदे की प्रॉपर्टी के साथ या किसी और बंदे के ऊपर आप कुछ इंटरफेयर कर रहे हो, आप अनोयंस कॉज कर रहे हो, ठीक है। वेरएज ट्रेसपास में कैसा होता है कि आप डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस दिखाते हो। न्यूसेंस में ऐसा नहीं है कि आप किसी और के प्रॉपर्टी पे जाके दंगा मचा रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी पे खड़े खड़े कुछ ऐसा काम करो जिससे सामने वाले को डिस्टर्बेंस होता है, अनोयंस क्रिएट होता है, ठीक है, या तो फिर मेंटल डिस्ट्रप्शन होता है, तो उस चीज़ को भी हम न्यूसेंस मानेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि आप और आपके एक नेबर के पास एक गार्डन है, उनका सेपरेट है, आपका सेपरेट है, बीच में एक जॉइंट वॉल है। आपने वो वॉल तोड़कर उनके गार्डन में घुसने का ट्राई किया, दैट मीन्स आपने ट्रेसपास कमिट किया है। वेयरएज वो वॉल के आसपास आप कीचड़ डाल रहे हो जिसकी वजह से वहाँ मच्छर हो रहे हैं, ठीक है, एंड उसी के उनकी मतलब आपके जो नेबर की जो गार्डन की वॉल है वहीं पे उनका एक डॉग हाउस है जिससे उनका कुत्ता बीमार हो जाता है। इट इज़ अ न्यूसेंस। वेरएज आप फिजिकली उनकी प्रॉपर्टी पे जाके कुछ डैमेज करो, कुछ हल्ला मचाओ, तो उस चीज़ को हम ट्रेसपास बोलेंगे, ठीक है। बोथ न्यूसेंस एंड ट्रेसपास आर सिमिलर इन सो फार एज इन ईदर केस द प्लेंटिफ हैज़ टू शो हिज पोजेशन ऑफ द लैंड। मतलब यहाँ पे प्लेंटिफ को दिखाना पड़ेगा कि ये लैंड मेरी है। द टू में इवन कंसीड, जैसे आप वहाँ पे जाके कुछ हल्ला मचाते हो, आवाज़ें करते हो, तो उसे ट्रेसपास प्लस न्यूसेंस दोनों कहेंगे। Some kinds of nuisance being also continuing trespasses. The point of distinction between these two are as follows. If interference is direct, the wrong is trespass. मतलब अब direct है तो उसे हम trespass मानेंगे। अगर consequential है तो it amounts to nuisance। आप वो एक stages के अंदर करते हो। Planting a tree on another's land is trespass, but when a person plants a tree over his own land and roots or branches project over the other land, then this is nuisance। आप अपने ही प्रॉपर्टी के ऊपर पेड़ उगा के उसकी ब्रांचेस को सामने वाले प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट करते हो तो इट इज अ ट्रेसपास। टू थ्रो स्टोन्स अपॉन वन नेबर्स प्रेमाइसेस इज द रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास। टू अलाउ द स्टोन्स फ्रॉम अ रनियस चिमनी टू फॉल अपॉन द प्रीमाइसेस ऑफ रॉन्ग इज न्यूसेंस। मतलब किसी और के घर के अंदर आप पत्थर फेंकते हो तो दैट इज ट्रेसपास। वेरएज अगर आपको पता है कि आपके घर के आजू बाजू में कहीं पर डैमेज है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पत्थर किसी और की प्रॉपर्टी में गिर रहे हैं, तो इट इज़ अ न्यूसेंस, इट इज़ नॉट अ ट्रेसपास। Definition. According to Stephen, nuisance has been defined to be anything done, hurt or any annoyance of the lands, tenements or hereditaments of another, amounting other to trespass। मतलब किसी और को परेशान करने के लिए कुछ भी करते हो, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके घर के ऊपर, कहीं पे भी। According to Salmon, the wrong of nuisance consists in causing or allowing without lawful justification but not so as to amount trespass if escape of any deleterious thing from his hand or from the elsewhere।
into hand in the possession of the plaintiff, for example, water, smoke, smell, fumes, gas, noise, heat, vibration, electricity, disease, germs, animals, negligence. ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट आप किसी के घर में पानी ज़्यादा जाने दे रहे हो, गटर का पानी, उसकी स्मेल आ रही है, आप सिगरेट पीते हो वहाँ पे, देन इट ऑल कॉजेज टू न्यूसेंस टू समबडी. According to Dr. Winfield, nuisance is an unlawful interference with persons, use of employment of land or some right over in connection with it. जैसे कि आप अपने ईजमेंट राइट का गलत इस्तेमाल करते हो, ठीक है. जैसे कि किसी एक रोड के ऊपर ज़्यादा बारिश है और आपका और आपके नेबर का एक एडजॉइनिंग फार्म है, तो आप वो पानी जो है उनके लैंड में ज़्यादा डाल रहे हो क्योंकि आप वहाँ से स्पीड में निकल रहे हो, इवन तो वो रोड आप दोनों के बीच का कॉमन रोड है, बट आप वो चीज़ का यूज़ करके सामने वाले को एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो. काइंड्स ऑफ न्यूसेंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूसेंस, दैट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस एंड सेकंड इज़ द प्राइवेट न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस एज इन जो कि काफ़ी सारे लोगों को इफ़ेक्ट करता है, काफ़ी सब लोगों के बीच में आपको इफ़ेक्ट करता है. प्राइवेट न्यूसेंस इज़ मोर रिलेटेड टू कि वो खाली आपको ही इफ़ेक्ट करता है, ठीक है. इसे हम समझेंगे आगे. पब्लिक न्यूसेंस, the Indian Penal Code defines the nuisance as an act which causes any common injury, danger or annoyance to the people in general who dwell or occupy the property in the vicinity, or which must necessarily cause obstruction, danger or annoyance to the people who may have occasion to use any public right. Public nuisance affects the society and the people living it at large, or some considerable portion of the society, and it affects the rights which the members of the society might enjoy over the property. The act which seriously affects or interferes with the health, safety or comfort of the general public in a nuisance. Let's say for example there is a public garden, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग वॉकिंग करने के लिए आते हैं, फ्रेश एयर लेने के लिए आते हैं, बट उसी जगह पे कुछ लोग कॉन्स्टेंटली स्मोक करते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं, ठीक है, गालियाँ देते हैं. इस वजह से पब्लिक के सामने एक न्यूसेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लोग वो गार्डन जाना प्रेफर नहीं करते. इवन दो वो उनके कंफर्ट के लिए बनाया था, फिर भी वो लोग यूज़ नहीं कर पाते. तो इट इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस. ओके. Instances where an individual may have a private right of action in respect to a public nuisance. He must show the existence of any personal injury which is of a higher degree than rest of the public. Such injury has to be direct and not just consequential injury. The injury must be shown to have a huge effect. यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सनल इंजरी जो है वो उतनी हायर डिग्री की है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पब्लिक, कि सपोजेबली जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर गार्डन के अंदर, जैसे प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बंदा स्मोक कर रहा है, इवन दो वो एक ओपन गार्डन है फॉर वॉकिंग, जहाँ पे स्मोक करना इट्स नॉट अ रीजनेबल थिंग. किसी एक बंदे को आस्थमा का प्रॉब्लम है और ये स्मोक को इनहेल करने की वजह से उसकी तबीयत वहाँ पे बिगड़ती है. बाकी सब लोग जो है उनको नॉर्मल कफ होता है क्योंकि वो लोग यूज टू नहीं है ड्यू टू दिस स्मोक. तो ये पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जिसको वो आस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है सांस लेने में, उसको यहाँ पे कॉम्पनसेशन डेफिनेटली मिल सकता है, बिकॉज पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है. करने के बाद भी अगर किसी को ऐसा डैमेज होता है तो इट इज़ कॉजिंग अ न्यूसेंस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि उनको भी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ हो रही है. तो उस चीज़ को हम एक पब्लिक न्यूसेंस में कंसिडर करेंगे जिसके वजह से उनको डैमेजेस मिल सकते हैं. In Dr. Ramraj Singh versus Babulal, the defendant created a brick grinding machine adjoining the premises of the plaintiff, who was a medical practitioner. The dust entered the consulting chamber of the plaintiff and caused a physical. The brick grinding machine generated dust, which polluted the atmosphere and inconvenienced to him and patients, and their red coating on the clothes caused by the dust could be apparently visible. It was held that the special damages to the plaintiff had been proved and a permanent injunction was issued against the defendant, restraining him from running back his grinding machine there. यहाँ पे डिफेंडेंट बाबूलाल ने ग्राइंडिंग मशीन चालू की थी, जिस वजह से थोड़ा बहुत डस्ट धीरे धीरे करके प्लेंटिफ जो कि एक डॉक्टर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वहाँ पे उनके ऑफिस में जाना शुरू हुआ. उस वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा इनकन्वीनियंस क्रिएट हुआ, प्लस उनके जो क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर रेड स्पॉट्स होना शुरू हो गए. इस केस के अंदर कोर्ट ने एक इंजंक्शन ग्रांट किया था, दैट टू अ परमानेंट इंजंक्शन इशूड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम रनिंग बैक हिज ग्राइंडिंग मशीन देयर, कि मतलब वो पर्टिकुलर जगह पे आप ग्राइंडिंग मशीन अभी नहीं चला सकते हैं. ठीक है.
In Rose versus Miles, the defendant wrongfully moored his barge across a public navigable creek. This blocked the way for plaintiff's barges, and the plaintiff had to incur considerable expenditure in unloading the cargo and transporting the same by the land. It was held that there was a severe damage caused to the plaintiff to support his claim. यहाँ पे क्या था कि डिफेंडेंट ने अपनी बोट एक रॉन्गफुली एक जगह पे पार्क कर दी थी, जिस वजह से प्लेंटिफ की बोट जिसको वहाँ पे अनलोडिंग करनी थी डॉक्स की, मतलब वहाँ पे कुछ सामान उनको उतारना था विच ही वॉज ट्रांसपोर्टिंग, बिकॉज वहाँ पर वो डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली पार्क किया था, उस वजह से वो वहाँ पे कर नहीं पाया। उनको लैंड का रास्ता मतलब ज़मीन का रास्ता चूज़ करना पड़ा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था उनके लिए। इस सिनेरियो के अंदर उनको डैमेजेस मिले थे, प्लेंटिफ को डैमेजेस कोर्ट ने ग्रांट किए थे। Winterbottom versus Lord Derby. In this case, the defendant's agent blocked a public footway. The plaintiff brought an action alleging that sometimes he had to go by another route and sometimes he had to incur some expense in removing the obstruction. Held that he could not recover as he had not suffered more damage than could have been suffered by other members of the public. Justice Kelly observed that if we were able to hold that everybody who merely walked up to the obstruction or who chose to incur the expenses in removing it might bring his action for being obstructed, there would really be no limit to the number of actions which might be brought. यहाँ पे कोर्ट ने ही बोला था दैट ऐसी सब चीज़ें अगर कोर्ट के सामने आती रही तो उसका कोई नंबर हम लोग फिक्स नहीं कर पाएंगे, उसे हम प्रिज्यूम नहीं कर पाएंगे, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस इज अ काइंड ऑफ न्यूसेंस इन विच अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ his property is ruined by another. It may also injuriously affect the owner of the property by physically injuring his property or by affecting the enjoyment of property. Unlike public nuisance, in a private nuisance, an individual's usage or enjoyment of a property is ruined as distinguished from the public or society at large. The remedy for private nuisance is a civil action for damages or an injunction for both. पब्लिक न्यूसेंस में कैसा था कि वो एक पर्टिकुलरली पब्लिक प्लेस में हो रहा था जिसके अंदर आउट ऑफ दैट होल पब्लिक किसी एक बंदे को ज़्यादा उस चीज़ से इफेक्ट होता था, तो उसे हम पब्लिक न्यूसेंस मानेंगे। वैराज इन प्राइवेट न्यूसेंस क्या बोला है कि यूजेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, की जिस वजह से आप किसी और के लाइफ के अंदर अनोयंस क्रिएट करते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उसके एसेंशियल्स के ऊपर कि देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ यूजेज ऑफ एन्जॉयमेंट, देयर मस्ट बी सम डैमेज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई बंदे के पास एक स्पोर्ट्स कार है या स्पोर्ट्स बाइक है जिसके अंदर काफ़ी एक लाउड एग्जॉस्ट फिट किया हुआ है। बिकॉज ऑफ हिज एन्जॉयमेंट ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी वो काफ़ी बार नॉर्मल रोड्स के ऊपर लेट नाइट आवाज़ें कर करके निकलता है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक अनलॉफुल और एक अनरीजनेबल इंटरफेरेंस किया कि कहाँ पे काफ़ी लोग सो रहे होते हैं। देयर मस्ट बी सम यूजेज और टाइप ऑफ एन्जॉयमेंट, वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए और एन्जॉय करने के लिए ये सब कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम डैमेज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ, अभी किसी के कान सेंसिटिव है, किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है कि ये इतने लाउड साउंड्स की वजह से या वॉइसेस की वजह से उनको हेडेक होता है, माइग्रेशन होता है, तो इस माइग्रेन का पेन होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें प्राइवेट न्यूसेंस में कंसिडर करेंगे। इवन तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को वो इफेक्ट करते हो जाएगा, लेकिन फिर भी इट इज़ अ प्राइवेट न्यूसेंस कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे हो, दूसरी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए एक न्यूसेंस क्रिएट करके हो जा रहा है, तो इसे हम प्राइवेट न्यूसेंस बोलेंगे। इसके दो डिफरेंसेस है, प्रिस्क्रिप्शन एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कुछ काम कर रहे हैं कहीं पे भी तो वो डिफेंस इसके अंदर आएगा। वेरेस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है कि आप सामने जाके कुछ एक्शन लेते हैं दैट ये पर्टिकुलर चीज़ आप रोक दो, तो ये डिफेंसेस हैं। इसके लिए आप कोर्ट को डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेमेडीज़ के ऊपर। तो हमें क्या क्या रेमेडीज़ मिल सकती हैं इन एनी केस ऑफ न्यूसेंस। सबसे पहला है इंजंक्शन, कि आपको डिफेंडेंट के अगेंस्ट में एक इंजंक्शन मिल जाएगा। दैट कैन बी ए परमानेंट इंजंक्शन और टेम्पररी इंजंक्शन स्टेटिंग दैट कि आपका जो भी डिफेंडेंट है ये पर्टिकुलर चीज़ अभी फ्यूचर में नहीं कर सकता है कि जो वो अभी कर रहा था। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले केस में देखा था कि वो ग्राइंडिंग मशीन, डॉक्टर रामराज सिंह वाले केस में,
कि डिफेंडेंट को बोला गया कि आप अभी यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन नहीं चला सकते हैं क्योंकि उस वजह से जो डॉक्टर हैं उनके क्लिनिक के अंदर दिक्कतें आ रही हैं। सेकेंडली डैमेजेस, अभी कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर अगर आपको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या तो फिर इंजंक्शन नहीं मिलता है तो आपको डैमेजेस या कॉम्पनसेशन मिल सकता है कि जो एक इररेपरेबल लॉस हुआ है उस चीज़ को अभी कॉम्पनसेट करने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। वेयर एज अबेटमेंट कि आप वो मैटर खुद अपने हाथों में लेके वो न्यूसेंस को ख़त्म कीजिए। इट इज़ नॉट अ लॉफुल प्रोसेस, जस्ट मार्क माई वर्ड्स दैट अबेटमेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिबेलिएटिव वे कि आप खुद जाके लॉज के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, आप लॉ के साथ में भी रह के उस चीज़ को आप ख़त्म करने का ट्राई करते हैं या फिर कुछ अनलॉफुल चीज़ें भी आप इसमें करते हैं तो आप वो न्यूसेंस तो आप ख़त्म कर दोगे, दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ रेमेडी फॉर योर सेल्फ। बट उस चीज़ को करने में आप अगर किसी का मतलब कोई भी लॉ तोड़ते हो तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे आजू बाजू के अंदर, मेरे आजू बाजू के एरिया में काफ़ी सारे ड्रग पेडलर्स घूमते हैं, ठीक है। मैं बार बार कंप्लेंट करता हूँ लेकिन उस चीज़ की वजह से कोई पुलिस वाले ध्यान देते नहीं हैं और वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से काफ़ी सारे बच्चे लेट नाइट ये रास्ते पे पड़े रहते हैं जिसकी वजह से एक न्यूसेंस क्रिएट होता है। वो लोग चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं कभी कभी। इस चीज़ को रोकने के लिए मैं लाठी लेके सब ड्रग पेडलर्स को मारने निकल पड़ता हूँ। टेक्निकली मैं ये न्यूसेंस को तो स्टॉप कर दूंगा बट वाइल डूइंग दैट आई एम ब्रेकिंग अ लॉ। वो ड्रग पेडलर है या नहीं है वो बात का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैंने उनको मारा वो प्रायोरिटी बन जाएगा। सो अबेटमेंट का रास्ता ना चुन के इंजंक्शन एंड डैमेजेस आर मच मोर कन्वीनियंट एंड लीगल वे थ्रू विच यू कैन गेट रेमेडीज। ओके, this lecture is effectively over and I would like to thank all of you for listening to this lecture peacefully. If you guys have any questions, please visit our website judicialdream.com and please connect to us via our Instagram and Telegram page. We post legal magazines and other legal updates every day. You can definitely DM us if you have any kind of doubts, and if you have any kind of doubts pertaining to this video, we will also give you a descriptive answer on our website along with certain MCQs which you can use to take your own mock test. Once again, I would like to thank you all. Thank you very much and have a good day.